Jai Hind, dear students of class 9th. Welcome in geography class. In the sequence of revision, today I am going to start to revise lesson 2, physical features of India. Dear students, you know that India is one of the largest country in the world. We are the 7th largest country in the world. We are having varied landform features. Obviously, it is said India is a country of diversity. We are having plains, plateaus, mountains, and we are familiar with the terrain where we are living. Suppose we are living in a plain area, so we know that what type of physical setting of this plain area is here. In fact, it is said that our country India has practically all major physical features of the earth like the mountains, plains, deserts, plateaus, islands, etc. are found. You may be wondering how these physical features have been found. Do you know what the present shape and size of India you are looking? It was not the same in the past. In past, it was in different condition. India, especially the South India, that is called Peninsular India, as you are looking today, it completely once was there in southern hemisphere as a big island. Slowly it drifted toward north and came entirely in the northern hemisphere. In this lesson, we will discuss about the formation of Himalayas as well as the formation of Indo-Gangetic or the northern plains of India. We know that in India we find different types of rocks. There are some very hard rocks like marble, which is utilized to make Taj Mahal, while there are very short some of the marbles, some of the rocks like the soapstone, which is used to making talcum powder, also called talc stone. जिससे हम talcum powder जो हम लोग बॉडी में पाउडर लगाते हैं वो बहुत सॉफ्ट रॉक से बनता है पीस के, इसको बोलते हैं सोप स्टोन या talc stone. Our country is having various types of soils also. Soils have different colors as they have been formed from different rocks, and the rocks they have been formed in different geological past. Again, the word geological past I am using here. I am talking about million of years back. So there are various colors of soil found in our country due to various type of rocks. Today we are going to discuss about the formation of Himalayas and other things. But do you know how we can conclude these things? It is all based on scientific calculations and the evidences. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological formations, as I have said you, the peninsular block of India was located in southern hemisphere, very close to the Australia as an island. A number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified relief of India to its present form. But how do we know about all these things? It's all because of some scientific theories, or scientists have attempted to explain the formation of these physical features with the help of some theories based on certain evidences. Because theories are not given just, there must be some evidences which support the theories and prove it. One such plausible means sarvamanya. One such plausible theory is the theory of plate tectonics. According to this theory, the crust means the upper part or the layer of the earth. Earth is having three concentric layers. The upper part is known as crust, then in depth there is mantle, and in the center there is core. अर्थ जो है तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. According to this theory, the crust, it means the upper part of the earth has been formed out
of the 7 major and some minor plates. Now question arises, what are these plates and how they have been formed? Simple reason, very simple reason to understand it. We have to discuss first related to the topic temperature as that is going progressively higher as we are going depth inside the earth crust. हम क्रस्ट के अंदर जितना अंदर जाते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है. एक समय ऐसी भी स्थिति आती है कि उस टेम्परेचर पे कोई भी चीज सॉलिड कंडीशन में रह नहीं सकता है. जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेटल है और मेटल के नीचे अंदर कोर है. तो एट द टॉप ऑफ द मेटल, मेटल के टॉप पे, below the crust at the top of the mantle, there is a weaker zone which is known as asthenosphere. आर्थर होम्स नाम के एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया और बताया कि ये जो वीकर जोन है एस्थेनोस्फीयर, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की गहराई में मिलता है, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्मा. वहां पे कोई भी चीज सॉलिड कंडीशन में नहीं है, लिक्विड कंडीशन में है, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा. और ये मैग्मा क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट है, हैविंग अ टेंडेंसी टू राइज अपवर्ड. और इसकी टेंडेंसी अगर हम कोई भी चीज, दूध को जैसे हम खौलाते हैं तो ऊपर की तरफ उबलता है, उसी तरह से मैग्मा भी ऊपर उठने की कोशिश करती है. ऊपर उठती है, कूलिंग होती है, और कूलिंग होने की वजह से फिर से क्या होती है? सिंक हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, और इसके खाली जगह को भरने के लिए दूसरी गर्म मैग्मा उसकी जगह आ जाती है. तो मैग्मा जमीन के अंदर साइक्लिक मोशन में घूमते रहती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक मोशन, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ मैग्मा, देयर इज स्लोली टीयरिंग ऑफ द क्रस्ट इज गोइंग ऑन. धीरे धीरे क्रस्ट में दरार पड़ती रहती है, क्रस्ट फटता रहता है. और इसी तरह पास्ट में ये होता रहा और लंबे समय तक होता रहा, और अर्थ क्रस्ट इसी मैग्मा के अप एंड डाउन मूवमेंट के वजह से टीयर्ड हो गई 7 मेजर पार्ट्स में और सम माइनर पार्ट्स में. एंड these 7 major parts which are called fragmented part of the crust are known as plates, lithospheric plates. Lithosphere doesn't mean the crust only. Lithosphere includes both the crust, the entire crust, and the top mantle. टॉप मेंटल और पूरे क्रस्ट को मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स. और ये जो प्लेट्स हैं ये रुके हुए नहीं है, ये मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं. ये प्लेट क्या है? रुके हुए नहीं है, ये प्लेट ऑलवेज इन मोशन है. किसके ऊपर तैर रहे हैं? मैग्मा के ऊपर. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर. वो जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, वो जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे. उन्होंने एक बार सोचा कि या तो इस जगह की क्लाइमेट चेंज हो गई, या तो फिर ये जगह ही अपनी जगह से खिसक के कहीं और चला गया. उसकी पॉसिबिलिटी को देखते हुए उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, सॉरी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. उन्होंने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कॉन्टिनेंट्स जो है वो सरकते हैं. फिर उनसे पूछा गया, इसके एविडेंस में बहुत सारा उन्होंने प्रूफ भी दिया. उनसे पूछा गया फिर ये खिसकते कैसे हैं? उन्होंने 2 फोर्सेस को बताया, पोल फ्लिंग फोर्स जो कि अर्थ रोटेशन की वजह से कॉज्ड होती है, और दूसरा फोर्स उन्होंने जिक्र किया टाइडल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन है. लेकिन दोनों ही फोर्स ये काम करने के लिए काबिल नहीं है. तो वैगनर की थ्योरी बहुत दिनों तक मान्य थी. People had believed that what the Wagner has said is correct. There are 7 major plates, these are the continents. But later the theory of plate tectonics has come in existence after the research of Arthur Holmes. Arthur Holmes के रिसर्च के बाद आई कि धरती के अंदर कन्वेक्शन करेंट्स हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से इतनी टेम्परेचर है कि मोल्टेन मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करता है, कूलिंग उसकी होती है, फिर सिंक करके नीचे जाता है. तो साइक्लिक मोशन में मैग्मा लगातार घूमता ही रहता है, और इसी घूमते रहने की वजह से अर्थ की धीरे धीरे टीयरिंग होती है, और ये 7 मेजर और सब माइनर प्लेट्स में बढ़ गई. फिर किसके ऊपर तैर रही है? ओवर द मैग्मा. वैगनर ये बताने में फेल हो गए थे.
इसीलिए उनकी थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन उन्होंने थ्योरी में कहा था कि पहले केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था पेंजिया। तो वाटर बॉडी भी एक ही थी, उसका नाम था पैंथालासा। Wagner has further stated that the Pangaea broken into two parts first. The northern part was termed as Angara land or the Laurasia, and the southern part was termed as Gondwana land. India, especially the peninsular India, was the part of Gondwana land. The modern plate tectonics theory is different than the thinking of the Wagner. थ्योरी क्या कहती है प्लेट टेक्टोनिक्स की कि कभी हो सके कि सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठा हो गए हों, इकट्ठा होकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाए हों, लेकिन ये कभी भी एक साथ रहे नहीं, ये हमेशा मोशन में रहे और फिर दूर दूर चले गए। तो प्लेट टेक्टोनिक मानती है दीज प्लेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड ऑलवेज इन मोशन। तो जो प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? मैग्मा के ऊपर। एंड द प्लेट इज नॉट मेड अप ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओनली। प्लेट टेक्टोनिक कहती है प्लेट केवल कॉन्टिनेंट्स के बने हुए नहीं है। प्लेट कैन बी अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, इट कैन बी अ ओशनिक प्लेट, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक प्लेट के बारे में देखा है। पैसिफिक प्लेट को हम लोग बोलते हैं ओशनिक प्लेट क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर्ड है पैसिफिक ओशन के द्वारा। यूरेशियन प्लेट, इसका मैक्सिमम पार्ट कवरेज है कॉन्टिनेंट के द्वारा, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। और दूसरे प्लेट्स हैं जैसे साउथ अमेरिकन प्लेट, उसमें ओशन का भी पार्ट है और कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है। सो द प्लेट्स में बी कंप्राइज्ड ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन और बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेट मूवमेंट that is of three types basically: convergent, divergent and transform. Folding, faulting and volcanic activities are going on the earth's surface. Broadly speaking, these plate movements are classified into three types. First, while some major plates or while some plates come towards each other, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, form convergent boundary. जब दो प्लेट हैं, सपोज करो प्लेट 1 ये प्लेट 2, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बाउंड्री बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कभी कभी कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ड्यू टू टेंशनल फोर्सेज एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब दो प्लेट दूर जाएंगे तो कौन सी बाउंड्री बनी? डाइवर्जेंट बाउंड्री। In the event of two plates coming together, they may either collide or crumble or one may slide under the other. जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हो तो एक प्लेट एक दूसरे के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के केस में है। इंडियन प्लेट अभी भी डाइव करके अंदर जा रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसते जा रही है और हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है। At the time, they may sometime move horizontally past each other and form transfer boundary. और कभी-कभी प्लेट ना तो दूर जाती है, ना तो एक दूसरे के करीब आती है, बल्कि एक दूसरे के बगल से horizontally slide past होके निकल जाती है, एक दूसरे से रगड़ करते हुए निकल जाती है। तो इससे जो बाउंड्री बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर बाउंड्री। The boundary is known as transfer boundary. The movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions. जैसा कि हमने बताया कि वैगनर साहब ने कहा था नहीं ये कॉन्टिनेंट सरक रहे हैं, क्यों सरक रहे हैं बताने में फेल हो गए, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसको प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं इसमें बताया गया कि नहीं, धरती में जब हम 400 किलोमीटर की लगभग गहराई में जाते हैं तो वहां पे टॉप मेंटल पे एक वीकर जोन है, इसमें मैग्मा मिलता है, वहां कुछ भी सॉलिड कंडीशन में नहीं है और उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एथनोस्फीयर में मैग्मा है और उसके ऊपर ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं। प्लेट या तो कॉन्टिनेंट हो सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों मिला के हो सकते हैं, या केवल ओशनिक हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया एंड दे हैव बीन चेंज्ड द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। इन दिस वे इंडिया वाज फॉर्म्ड आल्सो। हाउ? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। Very first, I am going to show one figure to you to understand the plate movement.
Now see, here you can see one plate, this is the second plate. Both the plates are coming close to each other. देखो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और करीब आ रहे हैं तो कौन सी बाउंड्री बन रही है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे देखो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कौन सी बाउंड्री बन रही है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यहाँ पे प्लेट ना तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ना तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के बगल के सरक जा रहे हैं, तो कौन सी बाउंड्री बन रही है? ट्रांसफर बाउंड्री। प्लेट टेक्टोनिक इन्हीं तीन बाउंड्री और मूवमेंट्स के बारे में बताता है। नाउ सी हियर वन थिंग, हियर वन प्लेट इज गोइंग बेनेथ द अदर। यहाँ देखो जो एक प्लेट है दूसरे प्लेट के अंदर धंस रही है, तो यहाँ पे जो धंसाव की क्रिया होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जहां पे धंसती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ सबडक्शन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ सबडक्शन। और यहाँ पे देखो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे लाइन यहाँ फॉल्टिंग हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड। क्या बोलते हैं? स्प्रेडिंग साइड। यहाँ पे देखो खासियत क्या है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जब जा रही है तो क्या हो रहा है? मेल्टिंग, मेल्टिंग हो रहा है एक प्लेट का जो कि अंदर जा रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री को डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप को भरने के लिए मैग्मा नीचे से अंदर से बाहर आती है और न्यू रॉक फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना तो कोई गेन है ना तो कोई लॉस है, इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव बाउंड्री बोलते हैं, ट्रांसफर बाउंड्री को। क्लियर इट इज? Now I am going to discuss about the formation of India. इंडिया बना कैसे? प्रेजेंट शेप में, प्रेजेंट साइज में इंडिया आया कैसे? अगेन वी हैव टू रिकॉल द स्टोरी ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया एंड पेंथालासा, द वाटर बॉडी। As I have told you, very first Pangaea was broken into two parts. The northern part was called as Angara land and southern part was termed as Gondwana land. India was the part of Gondwana land. The oldest landmass, the peninsular part. इंडिया का जो सबसे पुराना हिस्सा है कौन सा है? इंडियन पेनिनसुलर पार्ट, पठारी भाग जो भारत का, जो भारत का नीचे का तिरछा हिस्सा देख रहे हो उसको इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये सब सिंगल लैंड मास थे। फिर इनमें एक दूसरे से टूटे, इंडियन प्लेट भी टूटी इसी कॉनिकल कंडीशन में। Indian peninsula in the conical shape was broken from the Gondwana land and start drifting towards north. Simply you can say due to the convection currents split the crust into number of pieces. Gondwana land अलग अलग पार्ट में बटा। क्यों बटा? क्योंकि वही कारण साइक्लिक मोशन ऑफ मैग्मा, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ मैग्मा, उसके वजह से thus leading the drifting of the Indian Australian plate after being separated from Gondwana land towards north. फिर इंडियन प्लेट से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गया और इंडियन प्लेट बढ़ने लगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। The northward drift resulted in the collision of the plate with much larger Eurasian plate. और अपने नॉर्थवर्ड जर्नी के दौरान इंडियन प्लेट जो पेनिनसुलर प्लेट था, ये किससे आके टकराया? अपने से एक बड़े यूरेशियन प्लेट से। और जहां पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराए उसके बीच में एक शैलो सी थी। देयर वाज ए शैलो सी, इट्स नेम वाज टेथिस। वहां पे कम गहराई का छिछला सागर था जिसका नाम था टेथिस, TETHYS, टेथिस। इट वाज फुली एक्युमुलेटेड विद सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। ये पूरी तरह से सेडिमेंट से भरा हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स, इंडियन प्लेट फ्रॉम साउथ and Eurasian plate from north, because of this collision where Tethys was there, fully accumulated of sediments got crumbled. जब दोनों ओर से फोर्स लगा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का, तो फिर क्या हुई? दोनों ओर से अगर किताब को आप दबाओगे तो क्या होगा? देखते हो ना, फोल्ड हो जाता है।
तो उसी तरह फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग होने की वजह से अप फोल्ड और डाउन फोल्ड बने, अप फोल्ड और डाउन फोल्ड बने और इस तरह हिमालय अपने एग्जिस्टेंस में आ गया. So how Himalaya is formed? Himalaya is formed due to collision of Indian and Eurasian plate in recent geological past, and where Himalaya is present today, there was a shallow sea called Tethys. So in this way the Himalaya come in existence or formed. The Himalayan uplift out of Tethys and the subsidence हिमालय बना. हिमालय कहां से उभरा? टेथिस से. एंड सबसिडेंस ऑफ नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. अब जब पेनिनसुलर प्लेटू जो था इसका नॉर्दर्न पार्ट धंस गया, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन. और इसके वजह से नॉर्दर्न फ्लैंक जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका नॉर्दर्न फ्लैंक जब धंसा, तो नॉर्दर्न पार्ट जब धंसा तो वहां पे एक लार्ज बेसिन या बहुत बड़ा गड्ढा बन गया. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in north and peninsula. धीरे धीरे हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर उसमें सेडिमेंटेशन करते गए, डिपोजिशन होता गया और धीरे धीरे अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. जब हिमालय बन गया, कैसे बना? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से. और कहां पे बना? जहां पे टेथिस सी थी वो उसी में उभार आ गया और वहां हिमालय बन गया. और हिमालय बनने के बाद पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट धंसा, वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा बना. वो तो धीरे धीरे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के द्वारा डिपोजिशन करके भर दिया गया और वहां पे एक फ्लैट एक्सटेंसिव इलेवियल डिपॉजिट्स ऑफ लैंड का क्रिएशन हुआ, जिसको हम आज बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया और द इंडो गंगेटिक प्लेन्स. Up to this, today we have discussed. Next we will discuss about the other things also. I hope you have enjoyed the revision. Thank you. Have a nice day.